You gotta improve it as much as possible whenever you get the time. Okay, let's take a look on a passive voice today. Before we move any further, let's take a look at a passive voice. I don't know what you know about much about the passive voice or not, or have you learned the passive voice so far or not? That was really nice conversation. So have you learned any passive voice so far yet? Or not at all? Have you got any idea regarding the passive voice? No, sir. What is passive voice? How do we use it? What is supposed to be done with passive voice? No, not at all. No idea at all. Okay, here you go. Give me 1 minute, please. Hello, Telco. May I know your name, please? What, please? Can you spell it? Cinteel. Okay, Ting. Okay, Tin. Yeah, okay. Then Tim Clark. Okay, done. Tim Clark, and your company name, please. So, what problem are you facing now? Okay, you got any problem? Would you mind telling me, please? Okay, I'll ask him to call you now. Yeah, he's not there. He's busy on another call. Just give me 2 seconds. As soon as he gets free, he'll get back to you. Yeah, he's dealing with another client. Just give me 2 seconds, then he'll get back to you. He's gonna call from his number. Yeah, he's gonna use his number 0207199567. That is the number he's gonna use. The same number you're calling. He's gonna call you back from the same number. Okay, Sir, your voice is not clear. Yeah, the number you're calling, the same number. He's gonna use it. 0207199567. Okay, I got your number. 07770. Yeah, that is the same. Okay, sorry for the interruption. I received a call. Okay, here you go, the passive voice. Have you got any idea what the passive voice is? No, sir. No one, not any idea what the passive voice. Haven't you learned so far? No, sir. No, you didn't learn the passive voice, really. So There can are I? two. Okay, yeah, you can tell. It may be like the passive voice is a voice where object is given importance. In this, is it? Passive voice. Do you have any idea what the passive voice is? I mean, so, like where object is given importance. It's not about the object, it's about the target. सर Oh, it's you are near. देखिए इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाती है. That is one of the biggest mistake you are thinking. Do not think like that. If you keep thinking like that, you cannot make the passive voice good. You know, that is the general concept we have. Object become a subject. And who said to you, object become a subject as a passive voice? We can convert, but it's not necessary. Like I said, English is taught. But usually people are thinking when subject become an object, that is passive voice. That is a wrong concept. Basically,
the reason of using passive voice when we do not want to mention the doer of an action. In Urdu, जब हम काम करने वाले का जिक्र नहीं करना चाहें, so we use passive voice. The doer of an action, if we don't want to mention the doer of an action, that is a passive voice. If you want to mention the doer of an action, if you want to mention, then that is active voice. Active voice में काम करने वाला मौजूद होता है, पैसिव वॉइस में काम करने वाला डूअर ऑफ एन एक्शन मौजूद नहीं होता और इट हैज नो वैल्यू, उसमें उसकी कोई वर्थ नहीं होती, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन टारगेट. Sir, can we say that passive voice is that in which the person or object that experiences the action, and in an Yes, active they definitely. perform the action? I think they are okay. suffering the consequences. They are not doing, they are suffering. Like I said, I am being taught means action is going on over me, and it means I am taking the action. Target is taking the action. जो टारगेट होता है वो एक्शन को लेता है, it suffers the action. That is called the passive voice, not the doer. Doer is doing some action here, the target and the object is taking an action, so that is called the passive voice. Passive voice में, let me tell you, explain. Passive voice में what is being done is more important. क्या किया जा रहा है ये important है, who is doing that, that is not important. कौन कर रहा है ये important नहीं है. That is the basic you need to know. Active voice, the doer of an action is very important. कौन कर रहा है? And the passive voice, what is being done, क्या किया जा रहा है? That is the more important, like a target. What is the target? So that is the passive voice. Passive voice क्या होता है? जिसमें हम काम को फोकस करें, काम किया जा रहा है, कौन कर रहा है, we are not interested in it. हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है. Like I said, streets are cleaned daily. गलियां रोजाना साफ की जाती हैं, कौन कर रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें दिलचस्पी नहीं है. वी आर फोकसिंग व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है. ओके, हैव यू गॉट द आइडिया? द बेसिक ऑफ पैसिव वॉइस, व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, रादर देन हु इज डूइंग दैट, कि कौन कर रहा है. ओके, दैट इज द बेसिक ऑफ पैसिव वॉइस, कि क्या किया जा रहा है, दैट इज द पैसिव वॉइस, रादर देन हु इज डूइंग दैट, कौन कर रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट. That is the basic of the passive voice. And active voice, we are interested who is doing that. Like I said, I'm teaching you. That is active voice. It means I am the doer of an action and I'm performing the action. Okay, that is the basic of passive voice. Let's take a look. Sir has also written some of the sentences, right? In English, sentences in either active or passive voice. Sentence are in two voices, whether it could be a active or passive. Sentence जो है वो active भी हो सकता है और passive भी हो सकता है. Like sir has given some of the example. Active voice in the easiest way of making sentences. Like I said, Sir Hasib is teaching us passive voice. Okay, that is active voice because Sir Hasib is doing an action. Sir Hasib काम कर रहे हैं. He's a doer of an action. That is why it's a passive voice. It's an active voice. ये active voice है because the doer of an action is available over there. Okay. अच्छा, passive में what we are doing, we are focusing the object and the target rather than the doer of an action. अच्छा, doer of an action we are mentioning in passive voice only 15%. Doer of an action को हम सिर्फ 15% passive voice में लेते हैं. Usually people are thinking buy is not necessary. Buy is not necessary. है ना? Usually apple is eaten by me. No, it's not necessary. Otherwise use active voice. If you want to, you give the agent, to performer or doer of an action, do not use passive voice. Otherwise, what is the good of using passive voice? Passive voice का मकसद ही क्या है? अगर if you are giving the doer of an action, what is the good of using passive voice? फायदा क्या फिर? You can use active voice. Okay, like I said, passive voice is being taught to us by Sir Hasib. अब passive voice जो है हमें पढ़ाया जा रहा है
by Sir Hasib के जरिए. But that this is, I don't consider it right. Do not use by with an agent. Do not use agent. Agent को use मत करें. Like I said, passive voice is being taught. Passive voice पढ़ाया जा रहा है. That's it. Who is teaching that? We are not interested in it. हमें दिलचस्पी नहीं है कौन पढ़ा रहा है. हमें दिलचस्पी क्या है कि क्या हो रहा है. What is being done rather than who is doing that. क्या हो रहा है, we are interested in it rather than who is doing that, we are not interested in it. हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कौन कर रहा है. That is the basic motive of the passive voice. का मकसद क्या है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, we are not interested in it. What is being done rather than who is doing that. That is the main motive of the passive voice. Okay. When the subject of the sentence perform an action of the verb, we say that the sentence is active voice. जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस हैव अ स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट एंड क्लियर टोन. इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस द पर्सन और थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन सेंटेंस कम फर्स्ट, है ना. एक्टिव वॉइस में हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन इज वेरी नेसेसरी. विदाउट डूअर ऑफ एन एक्शन वी कैन नॉट स्टार्ट एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को हम डूअर ऑफ एन एक्शन के बगैर नहीं बना सकते. But that is the quality of the passive voice. Without subject we can, or without doer of an action we can make the passive voice. हम passive voice को बगैर किसी doer of an action के बना सकते हैं. That is the quality of the passive voice. In active voice we cannot make any sentence without a doer of an action. बगैर doer of an action के हम sentence नहीं बना सकते. But in passive voice we can make a sentence without a doer of an action. उसमें action, doer of an action is not necessary. जरूरत ही नहीं है. Like I said, English is taught. English पढ़ाई जाती है. कौन पढ़ाता है? We are not interested. क्या काम हो रहा है? We are interested in it. And what is the target? English is target. English is a target. And what is being done? क्या किया जा रहा है? पढ़ाई जाती है. Like English is taught. So we are interested in a target. What is our target? Rather than who is doing that. इससे ज़्यादा कि कौन कर रहा है. Like I am giving you some example of active voice. Like Sir Hasib teaches us English. Sir Hasib हम English पढ़ाते हैं. Sir Hasib is called every day. That is the passive voice. Sir Hasib को रोजाना कॉल की जाती है. I call Sir Hasib every day. That is active voice. Saira is calling you. That is active voice because the doer of an action is available. अच्छा, let me tell you one thing. Target can be a thing or can be a human being. Target जो है, or like a object, it could be a human, it could be a lifeless thing. बेजान भी हो सकती है, जानदार भी हो सकती है. Usually people are think passive voice only is we are using as a target for the lifeless thing. बेजान चीज होगी. That is the wrong concept. Target मैं भी हो सकता हूँ. Like I said, I am being kidnapped. मुझे kidnap किया जा रहा है. It's mean I am the target. Who is doing that? I don't know. I am being kidnapped. I am being taught. मुझे पढ़ाया जा रहा है. So I is a target over here. I is not a subject over here. I काम नहीं कर रहा. I के ऊपर काम हो रहा है. Okay. I is not doing an action. I is receiving an action. So that is why we call it target. I'll write you the formula of passive voice as well. What is the basic formula of passive voice? You need to know the basic formula. Just 1 minute, please. Yeah, I don't know. So many calls. Okay. Are you getting the point? The basic point, are you getting? What is passive voice? We do not Yes, sir. need an performer of an action. हमें action perform करने की वाले की जरूरत नहीं होती. We do not need it. We can make passive voice without a doer of an action. काम करने वाले के बगैर भी आप passive voice बना सकते हैं. And that is the beauty of passive voice. यही passive voice की खूबसूरती है. We do not need an agent. हाँ, if agent is needed, अगर agent की जरूरत है, then you can use by. Like I said, my house was built. That is also correct. ये भी सही है. I said my house was built in 1980. है ना, मैं बोलता हूँ मेरा घर 1980 में बनाया गया. I'm not giving any agent. मैं agent कोई नहीं दे रहा किसने बनाया. But if I want to mention an agent in a passive voice, then I need a by. I said my house was built in 1980 by my grandfather. किसने बनाया?
Who was the performer of an action? Action perform कौन कर रहा था? That was my Grandfather. grandfather. But he is not necessary. I am using passive voice. What was being done? मैं घर की बात कर रहा हूँ कि मेरा घर बनाया गया. I'm not giving importance to my grandfather. मैं grandfather को focus नहीं कर रहा. He is not my target. वो मेरे टारगेट नहीं है मेरे ग्रैंडफादर. मेरा टारगेट क्या है? मैं बोलता हूँ मेरा घर 1980 में बनाया गया था. सो इट्स मीन आई एम फोकसिंग ऑन माय हाउस. माय हाउस इज अ टारगेट. वो टारगेट है और ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. लाइक एक्शन वर्ब आई एम यूजिंग बिल्ट, है ना. आई सेड माय हाउस वाज बिल्ट. एक्शन क्या परफॉर्म हुआ? बिल्ट. टारगेट क्या था? व्हाट इज द टारगेट? टारगेट जो है वो क्या है? हाउस है. और एक्शन क्या परफॉर्म हुआ उसके ऊपर? बिल्ट. अब कौन कर रहा था? आई एम नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस. अगर मुझे इंपॉर्टेंस अपने ग्रैंडफादर को देनी है, देन आई यूज एक्टिव वॉइस. लाइक आई सेड माय ग्रैंडफादर बिल्ट माय हाउस इन 1980. अगर मुझे, इफ आई वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू अ एजेंट, देन आई यूज एक्टिव वॉइस. अगर मुझे परफॉर्मर ऑफ एक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है, देन आई नीड एक्टिव वॉइस. अगर मुझे ऑब्जेक्ट और टारगेट को इंपॉर्टेंस देनी है, देन आई यूज पैसिव वॉइस विदाउट एन एजेंट. Like I said, my house was built in 1980. Or if I want to mention an agent, अगर मैं mention करना चाह रहा हूँ, then I can use by my grandfather. Okay, that is the basic. You need to know active voice, who's doing an action, passive voice, what is being done. क्या किया जा रहा है? We're not interested in a subject, who is performing it. Okay. Okay, I'm reading now, as you can see on your screen now. All three basic sentences in active voice. Okay, in active voice, we have subject, verb, and object. In a passive voice, we have a verb and object. We are not focusing the subject or a performer of an action. Okay. When do I use passive voice? In some sentences, passive voice can be perfectly acceptable. You might use in the following case. The actor and the doer is unknown. When we are known the doer of an action. अच्छा, हमें passive voice में action and doer of an action की we do not care about it. हमें फिक्र नहीं होती कौन कर रहा है. Like I said, the store was robbed last evening in 1920. Police have not been yet identified any suspect. यानी स्टोर को लूट लिया गया. किसने लूटा हमें नहीं पता और हमें अहमियत भी नहीं है. Like I said, I was robbed. मैं लूट गया. किसने लूटा? We don't know. Okay, we don't know who did it. I said somebody called me. किसी ने मुझे कॉल की. I was called. मुझे कॉल की गई. This means I'm not mentioning that somebody who did it. किसने किया था? Passive voice का एक फार्मूला भी है. You know what is the formula of the passive voice? What is the helping verb of the passive voice का helping verb क्या है? That is be. अच्छा, be we have four form of the be. In present we use is MR. Past we are using जल्दी आओ, मैं was खाना verb. खिलाओ. Keep your mic mute, please. Okay. I'll mention you the basic formula of the passive voice is be plus third form of the action verb or the past participle or the passive participle, you can say the passive verb. Be is the helping verb of the passive voice. Passive voice का भी अपना helping verb होता है, that is be. अच्छा, be की present में form is MR है, past में was were है, perfect में been है और continuous में being है. You need to know. अच्छा, पैसिव वॉइस में वी आर यूजिंग डबल हेल्पिंग वर्ब. आप बोलेंगे व्हाट इज दिस? कि डबल हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं. जी जी, डबल हेल्पिंग वर्ब आएंगे. एक्टिव वॉइस का भी हेल्पिंग वर्ब आएगा और पैसिव वॉइस का भी हेल्पिंग वर्ब आएगा. यू नीड टू नो दिस. सपोज मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ. मैं बोलता हूँ आई एम बीइंग टॉट. मुझे पढ़ाया जा रहा है. इट मीन आई एम द टारगेट. मैं टारगेट हूँ, मुझ पे काम हो रहा है. और क्या काम हो रहा है? पढ़ाया जा रहा है. सही है जी. अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो एम भी आ रहा है और बीइंग भी आ रहा है. एम क्या है? इज एम आर जो है वो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग किसका हेल्पिंग वर्ब है? पैसिव वॉइस का. क्योंकि इज एम आर के आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फोर्थ.
तो पैसिव वॉइस की हमने बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग लगा दी, और बी के आगे थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए बीइंग के आगे थर्ड फॉर्म आ रही है। यू नीड टू नो द बेसिक फार्मूला, पता होना चाहिए आपको। We are using the double helping verb and sometimes we are using only the passive voice helping verb. सर बीन का आपने क्या बताया, दोबारा रिपीट करिएगा प्लीज। बी की 4 फॉर्म्स हैं, याद रखिएगा। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, परफेक्ट में बीन, और कंटिन्यूअस में बीइंग। मैं लिख भी देता हूँ, वेट आई राइट इट, वेट आई शेयर द स्क्रीन एंड आई राइट इट फॉर यू, so it will be more easy for you. थैंक यू सर। I'll share the screen and I'll write it to you. Okay, I'll write this, I'll share the screen and I'll write it to you. Okay, notepad, I'm writing the basic formula of the passive voice. Passive voice का basic formula क्या है? सबसे पहले the basic formula I'm writing, target, जिसके ऊपर काम हो रहा है। Number 1, target plus it depends. If you are using tenses, you can say, you can use tenses. Okay. If you are using modals, you can take modals. Okay. You can take modals like a should, can, could, may, might, or you can take semi modals like a used to, need to, dare to. Okay. Or semi modals, you can use semi modals. This is the basic formula I'm writing. Semi modals. Okay. प्लस, अच्छा ये तो हो गए, टारगेट आ गया, टेंस आ गए, मॉडल आ गए, सेमी मॉडल्स आ गए, सही है। अच्छा, देन आफ्टर दैट आपने क्या लगाना है? आपने उसके बाद बी लगाना है। अच्छा, डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ द बी। अब बी की फॉर्म्स और प्लस एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला कि सबसे पहले टारगेट आएगा, यानी जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, सफर कर रहा है। उसके बाद टेंसेस आ सकते हैं, मॉडल्स आ सकते हैं, सेमी मॉडल्स आ सकते हैं। उसके बाद पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आएगा बी। अच्छा, अब बी की 4 फॉर्म्स हैं, है ना। अगर हम बी की बात करें तो बी का प्रेजेंट क्या है? बी का प्रेजेंट क्या है? इज एम आर। नीड टू नो, बी का प्रेजेंट इज एम आर है, और बी के आगे थर्ड फॉर्म आएगी बी प्लस, ये बेसिक फार्मूला है पैसिव वॉइस का, बी प्लस एक्शन वर्ब की थर्ड। दैट इज द बेसिक फार्मूला। अच्छा, इज एम आर के आगे भी थर्ड फॉर्म आएगी, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब। अगर प्रेजेंट है, अगर पास्ट है, बी अगर पास्ट में आ रहा है, देन वी यूज वॉज वर, वॉज और वर। कैन यू सी द स्क्रीन? I don't know whether you can see or not. Yes, I'm sir. writing. Which was Okay. यस सर। So I'm writing for you, so it will be easy for you. Thank you, सही sir. जी, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर है, आपको मालूम होना चाहिए। बी की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट फॉर्म कौन सी है? दैट इज बीन। अच्छा, बीन के आगे भी एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके जी, आई एम राइटिंग फॉर यू, so you will get the basic idea of the passive voice का फार्मूला क्या है। B plus third form is the passive voice formula, है ना। टारगेट आएगा सबसे पहले, यानी ऑब्जेक्ट, those who's receiving action। अच्छा, अगर आप चाहें तो एजेंट लगाएं, चाहे तो एजेंट ना लगाएं, that is optional। लेकिन but we are not focusing on agent। passive voice का मकसद नहीं है कि हमने एजेंट लगाना है, ना फायदा है क्या, एक्टिव वॉइस ही लगा लें। ओके। अच्छा जी, कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होगा?
कंटिन्यूस Being. फॉर्म में हम बीइंग, जी हाँ बीइंग लगाएंगे। जितने भी कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, जितने भी कंटिन्यूस है उनके अंदर हम बीइंग लगा लेंगे और आगे एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मूलों के हिसाब से, जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है ना, एज आई हैव रिटन द फार्मूला ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, आई कैन एक्सप्लेन लाइक दैट। फर्स्ट करें, मैं एक जुमला बोलता हूँ प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में मैं क्या ले लेता हूँ, एक टारगेट ले लेता हूँ। आई कैन चूज अ टारगेट। मैंने टारगेट क्या लिया, मैंने टारगेट लिया इंग्लिश। अब मैं बोलता हूँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब प्रेजेंट में क्या आता है बताएं? इज एम आर, तो मैं इज एम आर में से ले लूंगा, इज ले लूंगा और Yeah, आगे sir. थर्ड वर्ग के थर्ड फॉर्म ले लूंगा। कौन पढ़ाता है, मैं तो दिलचस्पी नहीं है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इंग्लिश इज टॉट। ये जुमला मैंने किसमें बना लिया, प्रेजेंट सिंपल में, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसी जुमले को अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? English is being taught. इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। वेरी गुड, English is being taught. वेरी गुड, इसी पे आ रहा था मैं। अच्छा, इसी जुमले को अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस करूंगा, आप देखें इसमें डबल हेल्पिंग वर्ब आएगा। इंग्लिश तो टारगेट है, इंग्लिश को टारगेट किया जा रहा है। अब मैं इज जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, और उसके आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म। तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या है, बीइंग, और आगे थर्ड फॉर्म। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। इसी को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कर दूं, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? English is English being taught. Being अब taught. क्या होगा, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। सबसे पहले हम टारगेट लेंगे, टारगेट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश अब हम बीइंग क्या टॉट। करेंगे, नहीं, अब इंग्लिश के बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, हैव या हैज? जी नहीं, हैव या हैज, तो हम हैज लाएंगे। अब पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, Been. बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या है, Been. प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैव और हैज का थर्ड फॉर्म लेते हैं। yes. यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, हैव हैज के आगे थर्ड फॉर्म किसकी लेंगे, Has been taught. बी की। Be बिल्कुल की सही है sir. जी, यही English has समझाना been चाह रहा हूँ। taught. इंग्लिश It has पढ़ाई जा been चुकी taught. है। अब इसी को पास्ट सिंपल में ले लेता हूँ, पास्ट सिंपल। English had Had बताएं, been taught. had been taught. जी नहीं, गलत। English was taught. पास्ट सिंपल, इंग्लिश तो मैं ले लेता हूँ टारगेट, ये मैंने ले लिया। Was. अब क्या करूं, Was, sir, English was बिल्कुल taught. सही है। बी की सेकंड फॉर्म क्या है, was। Was Yeah. taught. इंग्लिश was taught, इंग्लिश पढ़ाई गई थी। अब पास्ट कंटिन्यूअस ले लेता हूँ। English was being taught. अब क्या करूं, English was being taught. Taught. वेरी गुड। was क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और बी की आईएनजी फॉर्म क्या है, इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। English was being taught. कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जो है was वर्ब है, और आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बी की फोर्थ फॉर्म क्या है, Sir, being. बीइंग है ना जी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट, English had been taught. वेरी गुड। आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, यू कैन कॉपी दिस। बेसिक लिख रहा हूँ, बेसिक आइडिया। इंग्लिश, अब पास्ट Had परफेक्ट been हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, Had. और बी की थर्ड फॉर्म Had. Been. बीन, Taught. एंड Had been taught. Been taught. बिल्कुल सही है। फ्यूचर सिंपल, बट सर जब हम पास्ट सिंपल बनाते हैं तो इसमें ये कोई हेल्पिंग वर्ब या एक्सक्लूसिव वर्ब तो यूज नहीं करते।
तो जैसे आपने जी इंग्लिश हाँ, जब भी वाज तो का जी हाँ, जब भी तो मैंने पैसिव वॉइस का देखें, लेट मी टेल यू एक्सप्लेन वन थिंग। जब हमारे पास एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट ले लेंगे। यस जी सर हाँ, जैसे प्रेजेंट सिंपल में देखें तो मैंने इज लिया है यस सर क्योंकि उसमें उसका हेल्पिंग वर्ब आ नहीं रहा, इसलिए। इसी तरह पास्ट सिंपल में मैंने डायरेक्ट पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिया, एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में, है ना। यस सर जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई वेंट टू मार्केट, तो देख लें इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब एट ऑल। तो जो यस पास्ट सर सिंपल का पॉजिटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है एक्टिव वॉइस में, तो हमने डायरेक्ट पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब ले लिया। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल में भी के पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हमने डायरेक्ट इज ले लिया, हमने लिया। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज एम आर लाजमी आता है, तो हमने वहां डबल हेल्पिंग वर्ब लिया है, एक एक्टिव वॉइस का और एक पैसिव वॉइस का। एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिया, एक पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिया, इसीलिए इसके अंदर डबल हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। यानी कि सर जब जब मैं हम आपसे कह रहा था ना, आई टॉट यू। सिंपल एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब हम करेंगे तो हम डायरेक्ट ये वर्ब ले लेंगे। जी, डायरेक्ट बी की फॉर्म ले लेंगे। बी की बेसिक फॉर्मूला इज बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये देखिए यस इसके सर बेसिक फॉर्मूला क्या है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। और मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, टारगेट के आगे टेंसेस भी आ सकते हैं, मॉडल्स भी आ सकते हैं, सेमी मॉडल्स भी आ सकते हैं, फिर उसके आगे बी आएगा, फिर एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर आप एजेंट को मेंशन करना जरूरी समझती हैं तो बाय लगा के आप डूअर ऑफ एन एक्शन को भी लगा सकती हैं, बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मकसद फौत हो जाता है, यस सर देयर इज नो यूज ऑफ। देखें, अगर हम डूअर ऑफ एन एक्शन को लगा रहे हैं तो हमें पैसिव वॉइस की जरूरत ही क्या है, हम एक्टिव वॉइस यूज कर लें। Sir, may यस I सर ask one question, please? हाँ हाँ, यस, व्हाई नॉट। Sir, I just joined, so I just want to know, you are making active passive, but जी, मैं जिस I'm not doing active passive, I'm just doing passive voice। देखें, only passive एक्टिव को, voice. But हाँ, एक्टिव I को just पैसिव suppose करना, I eat apple. I eat apple. वो मैं बात, Apple is being eaten by me. Sir, we put by me, एप्पल but इज, now we are not going to put by me. What is the बाय reason हु behind सेड, that? दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। I लोग told ये this समझते before. हैं, Means we लोग ये don't put समझते हैं, subject देखें, into लेट मी object, एक्सप्लेन। object into subject. हाँ, वी डोंट देखें, पैसिव वॉइस का मकसद क्या है। पैसिव वॉइस का मकसद है हम क्या हो रहा है, हमें इसमें दिलचस्पी, कौन कर रहा है, हमें इतनी दिलचस्पी नहीं है। अगर हमें दिलचस्पी है कौन कर रहा है तो एक्टिव वॉइस लगा लें, लेकिन क्या हो रहा है, आपको दिलचस्पी इसमें क्या हो रहा है, तो आप पैसिव वॉइस को ही लगाएं, आपको भाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको दिलचस्पी नहीं है कौन कर रहा है। हाँ, अगर आपको अच्छा दिलचस्पी है कि कौन कर रहा है तो फिर आप बाय लगा दें। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है, हमें तो काम से मतलब है, हमें करने वाले से मतलब नहीं है, हमें But करने sir, वाले की in फिक्र नहीं है। formal way, if we are going to attempt any paper, so what we put? We just skip by me or we just put by हाँ, me? स्किप, यू डोंट नीड स्किप बाय मी। बाय मी लगाने का एक्टिव वॉइस ही बना लें, जरूरत क्या है, कान इतना लंबा घुमा के पकड़ने की जरूरत क्या है। आप बोलते हैं आई ईट एप्पल, जरूरत क्या है, एप्पल इज ईटन बाय मी, से मेरे जरिए खाया जाता है। इट लुक्स वेरी फुलिश सेंटेंस, जरूरत क्या है। So apple is eaten. It's एप्पल इज okay ईटन, with सेब खाए जाते हैं, हो। हाँ, इफ सम टाइम वी नीड इट तो आप लगा दें। अगर आप समझ रही हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि मेरा घर 1980 में बनाया गया, तो मेरा फोकस किस पे है, घर बनाने पे। किसने बनाया मुझे फिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसकी फिक्र है मुझे कि किसने बनाया था, तो फिर मैं बाय दे सकता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ माई हाउस वॉज बिल्ट इन 1980, मेरा घर 1980 में बनाया गया। लेकिन अगर मैं डूअर ऑफ एन एक्शन को इंपॉर्टेंस देना चाह रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ बाय माई ग्रैंडफादर, वरना मुझे जरूरत नहीं है, वरना मैं एक्टिव वॉइस में बना लूँ। मैं बोलता हूँ माई ग्रैंडफादर बिल्ट हाउस इन 1980, मुझे जरूरत क्या है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस हम तब लगाते हैं जब हमें डूअर ऑफ एक्शन को छुपाना हो, हाइड करना हो, वरना मकसद ही क्या है पैसिव वॉइस का, मकसद ही नहीं रहा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब हमें पैसिव वॉइस का बेसिक मकसद क्या है, हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे या हम उसको छुपाना चाह रहे हैं। जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं फीसें बढ़ाई जा रही हैं, अब कौन बढ़ा रहा है, मैं इसको छुपाना चाह रहा हूं। मैं बोलता हूं पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाने वाली है, कौन बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट अपने आप को छुपा रही है। ओके, व्हेनेवर वी आर हाइडिंग समवन, तो हम क्या करते हैं, हम पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ मैं लुट गया,
तो मैंने लूटने पे फोकस किया और अपने आप पे, जिसने लूटा मुझे उसको मैं बताऊं आई वाज रॉब्ड, मैं लूट लिया गया। तब मुझे जरूरत नहीं है ना, मैं बोलता हूँ आई वाज रॉब बाय रॉबर्स, तो मुझे क्या जरूरत है कि मुझे उसको मैं छुपा रहा हूँ या उसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, मैं अपने काम को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तो दैट इज द पैसिव वॉइस। ये जरूरी नहीं है कि एक्टिव को पैसिव में करते हैं, एक्टिव को पैसिव में करते हैं। दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गुड एट एक्टिव एंड पैसिव। और मैं एक बात और भी बता दूं आपको, पैसिव वॉइस हर वर्ब का नहीं बनता, पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। अब आप बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? No, sir, I know. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने आगे नाउन लेते हैं। जो वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं पैसिव वॉइस हमेशा उनके बनते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। फर्ज करें मैं बोलता हूँ आई हैव अ कार, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, क्यों? उसके आगे नाउन ही नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। या बोलता हूँ आई स्लीप एट, मैं बोलता हूँ आई स्लीप एट 10 o'clock, इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे नाउन नहीं आ रहा, प्रॉपर नाउन जिसको हम टारगेट बनाएं। तो हमें वो वर्ब चाहिए जो अपने आगे टारगेट लेते हो, ताकि हम उनको टारगेट बना के पैसिव वॉइस बनाएं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है ना। जैसे मैं बोलता हूँ आई स्लीप, तो मैंने पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स के बनते हैं। वी ऑलवेज मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, नॉट द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सही जी। पहले मैं पैसिव वॉइस का बेसिक मकसद क्या है? सब्जेक्ट को हाइड करना, डूअर ऑफ एन एक्शन को हाइड करना या उसको इंपॉर्टेंस ना देना, तभी पैसिव वॉइस आ रहा है, वरना तो एक्टिव वॉइस यूज कर लें हम। जरूरत क्या है पैसिव वॉइस की? व्हाई डू वी नीड इट? द क्वेश्चन इज दैट पैसिव वॉइस में की जरूरत हमें क्या है? अगर मैं बाय लगा के जबरदस्ती डूअर ऑफ एन एक्शन को लगाऊं, दैट इज द मिसकॉन्सेप्शन। लोग ये समझते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर लो। नो, इट्स नॉट अ पैसिव हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस। पैसिव एक अलग पूरा सब्जेक्ट है, अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसमें रिपोर्टिंग भी है, स्टार्टल भी है। 1 मिनट। हेलो, निकल कहो। May I know your name? May I know your name, please? Anita. A-N-I-T-A. Anita, right? Oh, Clark and Co. Clark and Co, right? What problem are you facing now? You cannot connect to the server. Okay. Okay, you cannot connect the server, right? Okay. Okay, I'll ask him to call you back. Just give me a few. Okay, no problem. I'll ask him to call you back. Just give me a few seconds. I'll ask him to call you back. Okay, take care. Oh, sorry, I received a call. Are you getting the point? What is passive voice? Passive voice है क्या? That is one of the most important thing you need to understand. Passive voice active voice को change कर लेना नहीं है। कि apple is I eat apple और apple is eaten by me, ये तो 9 और मैट्रिक का है। I'm just going above than that. मैं आपको से हट के पढ़ाना चाह रहा हूँ। वो तो मैं भी आपको करा सकता हूँ, एक्टिव वॉइस लिख देता हूँ, मतलब पैसिव वॉइस बनाए इसके। What is the good of it? That is not a 9 in metric level I want to teach. I want to teach you on the better and the some upper level or the next level. Are you getting my point? Yes, sir. Yes. वो तो मैं आपको मैं तो आपको लिख के दे सकता हूँ, I eat apple, Yes, मैं sir. पैसिव वॉइस बना दें, उसमें क्या है? I want to give you the basic reason why we are using passive voice. Passive voice use क्यों कर रहे हैं? जब भी हमें whenever we want to hide the doer of an action and whenever we are giving to the importance to the target rather than a doer, हमें doer of an action की फिक्र नहीं है, हमें target पे क्या काम हो रहा है ना? Like I said, English is being taught, तो target क्या है English और क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। That is what you need to know.
ठीक जी, पैसिव वॉइस बेसिक रीजन कि हमें हाइड करना है, वी नीड टू हाइड द डूअर ऑफ एन एक्शन एंड वी हैव टू फोकस ऑन द टारगेट। टारगेट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्यूचर सिंपल लिख दिया है, अब फ्यूचर सिंपल को हम कर लेते हैं। अब आप बताएं फ्यूचर सिंपल कैसे बनाऊं पैसिव वॉइस में। English will be English will taught. taught. English will taught. English English will taught. इंग्लिश विल टॉट और विल बी टॉट। Will be Will be taught. taught. बिल्कुल, बगैर पैसिव Will be. वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। बी इज द मेन इंग्रेडिएंट, बगैर बी के पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। रिमेंबर दिस, बी के आगे थर्ड फॉर्म लानी ही लानी है। दैट इज द बेसिक पैसिव वॉइस। बगैर बी की फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। रिमेंबर दिस। अच्छा, चाहे वो बी इज एम आर की शक्ल में हो, वॉज वॉर की शक्ल में हो, बीन की शक्ल में हो, या बीइंग की शक्ल में हो। आपको एक बार बताऊं, पैसिव वॉइस जेरेंड के साथ भी बनते हैं, पढ़ाऊंगा। रिपोर्टिंग पैसिव वॉइस भी होते हैं, स्टार्टल पैसिव वॉइस भी होते हैं, ठीक ना। डबल ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस भी होते हैं। आप बोलेंगे ये सब क्या है, पर फर्स्ट आई विल क्लियर योर बेसिक। पहले हम बेसिक को पढ़ लेते हैं, पहले हम ये सारे जुमले बनाते हैं। अब मैं बोलता हूँ इंग्लिश विल बी टॉट। विल क्या है, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब। बी क्या है, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। सही है जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। विल क्या है, विल इज द फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, और बी क्या है, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। देख लें, दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, एक टेंस का और एक पैसिव वॉइस का। तो डबल हेल्पिंग वर्ब वी आर यूजिंग। अच्छा, कभी कभार हम सिंगल हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, जब हमारे पास, जैसे प्रेजेंट सिंपल में देख लें, हमने सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का वर्ब उसमें नहीं आ रहा। इसी तरह पास्ट सिंपल में भी देख लें आप, एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, डायरेक्ट पैसिव वॉइस का आ रहा है, क्योंकि उसमें एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में देख लें, डबल हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, एक टेंस का और एक पैसिव वॉइस का। फ्यूचर में भी देख लें, डबल आ रहे हैं, एक विल और एक बी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, Will have been. Will have been. वेरी गुड। English will have been taught. Oh, you are getting idea now. बेसिक आइडिया क्लियर कर रहा हूं पहले मैं आपका। अब विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और बीन क्या है, बी की थर्ड फॉर्म। ये वैसे मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक से हट गया हूँ। आई एम लिटिल आउट ऑफ द ट्रैक नाउ। तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख रहा हूँ ये, सो यू विल गेट द आइडिया कि पैसिव सर वॉइस इस तरह है क्या। अच्छा समझ आ रहा है, थैंक यू सर, इस तरह अच्छा समझ आ रहा है। हाँ, वो मैंने लिख दिया वो फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मूला, टारगेट प्लस टेंसेस मॉडल सेमी मॉडल प्लस बी प्लस एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर मैंने बी की सारी चारों फॉर्म्स लिख दी हैं आपको, इज एम आर, वॉज वर, बीन एंड बीइंग। सही जी। अच्छा, अब इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं सेमी मॉडल्स में ले आता हूँ, यानी किसमें, हैव टू में। ये ले, हम हैव टू में बना लेते हैं। अब हैव टू में कैसे बनाएं, जैसे मैं बोलता हूँ इंग्लिश पढ़ाई जानी है, तो मैं क्या बोलूंगा, इंग्लिश तो ले आऊंगा। ये ले, इंग्लिश हैव टू टॉट। English हैव have की to जगह be taught. हैज टू English तो आ has जाएगा, to be taught. लेकिन पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, उसके बगैर नहीं बनेगा। इंग्लिश Be. हैज टू बी टॉट, English has to be taught. इंग्लिश पढ़ाई जानी है, या इंग्लिश पढ़ाई जानी पड़ती है। अब इसी का पास्ट कर लूं तो क्या करूंगा, हैड टू। English Taught. had to be Had taught. to be taught. बिल्कुल सही है, इंग्लिश पढ़ाई जानी पड़ी। Had to be taught. बिल्कुल Had सही to है, be taught. बगैर बी के नहीं बनेगा, बगैर पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा। सही जी। ये ले, अब हम यूज टू पे आ जाते हैं। ये ले, अब क्या करूं, English used to be taught. English used to be taught. English used to be बिल्कुल taught. सही। इंग्लिश पढ़ाई जाया करती थी, उर्दू इफ यू वांट टू ट्रांसलेट।
सही जी। अच्छा जी, नीड टू कर लेता हूँ। English need to be English taught. need to be taught. Sir, there is no need of be in used to. Used to, sorry, I forgot. Be के बगैर तो बन ही नहीं Yes, सकता। sir. Be is the basic ingredient of passive voice. अब वो be ले चाहे Yes, sir. is मार ले, That's what was, I. were, been or being, without it's non-possible. English needs to be taught. अच्छा, अगर नीड को पास्ट करना हो तो फिर क्या करूंगा? English had need to be taught. इसी को अगर पास्ट कर दूं, ये प्रेजेंट है, मैं लिख देता हूँ आगे। मैं बोलता हूँ इंग्लिश पढ़ाई जाने की जरूरत थी, फिर क्या करूंगा? बीन होगा, इंग्लिश नीड्स टू बीन नीड से क्या हो जाएगा? नीडेड हो जाएगा, आगे वैसे ही रहेगा। ये ले, ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। सारी क्लास आपकी इसी में निकल गई, देखें आज क्या करूं? What else I can do? Basic concept is very important. Basic Yeah, sir. This is very important for everyone. But the basic. So आपकी that is basic clear करा। Sir, if we don't have basic. Basic is very necessary ना। देखें, आप इंग्लिश Yeah, नीड sir. से नीडेड हो गया। अच्छा, आप मैनेज टू लगा लें, इंग्लिश मैनेज टू बी टॉट, मैनेज टू कर लें। मैनेज टू का मतलब क्या है? स्पेसिफिक सिचुएशन में पढ़ाई गई थी। सर ये English प्रेजेंट managed और to- पास्ट में बनाया है, ये फ्यूचर में नहीं बनेगा। हाँ, बन सकता है बिल्कुल। इंग्लिश विल नीड टू बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाने की जरूरत होगी, बिल्कुल बन सकता है। आप नीड टू को फ्यूचर में भी ले आ सकती हैं। मैं लिख देता हूँ, फॉर द फ्यूचर इंग्लिश विल नीड टू बी टॉट। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। विल नीड टू बी टॉट, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? नीड जो है वो तो एक, ये ले, इंग्लिश विल नीड टू बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाने की जरूरत होगी। मैनेज टू में बना लें आप, इंग्लिश मैनेज टू बी टॉट, इंग्लिश कामयाबी से पढ़ाई गई थी। इंग्लिश मैनेज टू बी टॉट। ये भी सारे सेमी मॉडल्स हैं। These all are the semi models. सही जी। सपोज टू ले लें आप, be supposed to। So here you use second form of manage. पास में यूज हो रहा है ना, प्रेजेंट में भी यूज कर सकती हैं आप। इंग्लिश sir. मैनेज टू बी टॉट, Manage. सपोज टू बी, बी सपोज टू बी, सपोज टू, बी सपोज टू में भी बना सकती हैं आप। इंग्लिश अगर प्रेजेंट है तो इज सपोज टू बी टॉट, पास्ट है तो वाज सपोज टू बी टॉट। ये लिख देता हूँ, इंग्लिश पढ़ाई जाए, इंग्लिश इज Taught. सपोज टू बी To टॉट। be To be taught. सही जी। ये प्रेजेंट में हो गया, आप इसको चाहें तो आप पास्ट भी कर सकती हैं। English was supposed to be taught. हाँ, इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए थी, समथिंग लाइक दैट। in a future. सर ये जो Supposed to be. बी जो है वो सेकंड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें उसको, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही बी से है, तो उसको वॉज कर लेंगे तो पास्ट हो जाएगा, लेकिन आगे पैसिव वॉइस वैसे ही रहेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये जो सपोज है इससे आपने इज एम वाज वर लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो नीड्स से उसमें आपने इज एम ये नहीं लगाया, बी लगाया तो सर। नीड जो है, नीड तो खुद ही वर्ब है ना। यहाँ जो सपोज्ड है ये बेसिकली ईडी एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, नीड के साथ बी थोड़ी आएगा, नीड खुद ही वर्ब है। यहाँ बी जो है, यहाँ सपोज जो है ये वर्ब थोड़ी है, ये ईडी एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। अब पता नहीं आपने एडजेक्टिव पढ़े नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता ना। अब वो ईडी एडजेक्टिव भी इंग्लिश के अंदर होते हैं,
जैसे टायर्ड है, इसलिए वर्ब नहीं है, वो ईडी एडजेक्टिव है। वरिड है, वो सारे ईडी एडजेक्टिव हैं। तो ये बी सपोज टू के साथ जो बी है बेसिकली ये इज एम आर या वॉज वर्ब के लिए यूज होगा पास्ट में कन्वर्ट करने के। नीड जो है वो वर्ब है, सपोज जो है वो वर्ब नहीं है, जब भी उसके साथ हमें बी देना पड़ेगा। सर एडजेक्टिव्स पे कोमल ने पढ़ाए थे हमें ना। कंटिन्यूज में नहीं यूज कर सकते? ईडी एडजेक्टिव कहलाते हैं, ये उसी की लिस्ट में है और उसके आगे इन्फिनेटिव लगा हुआ है, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी सपोज टू प्लस इन्फिनेटिव। अच्छा तो वॉज है वर्ब भी लगा सकते हैं? वॉज वर्ब भी लगा सकते हैं, बी की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल लगा सकते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, सेकंड वॉज वर्ब है, थर्ड फॉर्म बीन है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेंस के हिसाब से। लेकिन ज्यादातर सपोज टू प्रेजेंट और पास्ट में ही कन्वर्ट होता है, परफेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। कर रहे हो भी तो रहते हैं काफी भी तो बी सपोज टू हो गया। माना लिखी नहीं। अरे माइक ऑफ करें। नहीं, अब ये सारे सेमी मॉडल्स हैं, यूज टू, नीड टू, बी सपोज टू, बी, ये मैनेज टू, डेयर टू, है ना, डेयर भी लिख लें। इंग्लिश पढ़ाई जाने की हिम्मत की जाती है या की गई थी, डेयर टू लिख लें, है ना। सर इसका कंटिन्यूज नहीं बन सकता? नहीं, इसका कंटिन्यूस नहीं बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा। ये तो सारे सेमी मॉडल्स हैं, डेयर ये टू कंटिन्यूस में थोड़ी कन्वर्ट होंगे। इंग्लिश इज डेयर टू बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाने की हिम्मत की जाए, इंग्लिश इज डेयर, English was there to be taught. और फिर इंग्लिश वॉज भी। इंग्लिश इज देयर, इंग्लिश डेयर्स होगा, सॉरी, इंग्लिश डेयर्स टू बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाने की हिम्मत की जाए। अगर इसको पास्ट करना है तो आप डेयर्ड कर लें, पढ़ाई जाने की हिम्मत की गई थी, ये प्रेजेंट हो गया। आज आपकी सारी क्लास इसी में चली गई, अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा ना। This is मॉडल very वर्ब, important, sir, because This is so informative. detail is first time I learned this. डेयर्ड, Sir, your teaching ways is so different. So metric में I think I असल में दैट वाज द मैट्रिक लेवल ना, एक्टिव को पैसिव Yeah. करते रहो। Yes, दैट इज sir. फुलिशनेस, So सीखेंगे कैसे yeah. आप, हाउ विल यू लर्न? सर एंड का ये जुमला पास्ट है में आप आप बना वो रहे भी हैं इतना तो ये डिटेल में period नहीं लगाए था ना आप। जस्ट वो कहते हैं एंड का जुमला स्टार्ट में लिखिए, स्टार्ट का जुमला यूं कर नहीं, लीजिए। बाय लगा दैट इज के द या दैट बाय इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, यस ये गलत टीचर। तरीका है पढ़ाने का। सो दैट तो आप सीखेंगे कैसे सर आप मैट्रिक हमेशा, लेवल पे यही ये हाँ वो सिखाते मैट्रिक हैं। लेवल पे तो गलत है ना। वो मेरे बच्चा भी 9 मैट्रिक में, उसको ही बोलता हूँ ये कौन सी पैसिवाइज पढ़ लो, उल्टा सीधा, पता नहीं मैं कौन है इंटर पढ़ाने में वाले, हुआ नहीं सर, फिर पागल। मेडिकल में हुआ ही नहीं तो अभी सारे देखिए मैं आपको इसमें स्टार्टल भी कराऊंगा, प्रिसीडो भी कराऊंगा, रिपोर्टिंग पैसिवाइज भी कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्टेटिव पैसिवाइज भी होते हैं, कुछ एक्शन पैसिवाइज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा। फिर आपको गेट के साथ भी कराऊंगा कि पैसिव गेट के साथ कैसे यूज होता है और क्या फर्क होता है उसमें, फिर आपको मजा आएगा ना इंग्लिश में, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे Yes, sir. जाएंगी, वरना फायदा क्या, वहीं खड़ी रहेंगी। यस सर, दैट रीजन इज हाँ, अब इसमें आप छोड़ लिए हैं, सर ये क्लियर जो हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो कैसे नहीं बनता? फ्यूचर परफेक्ट देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता। कुछ हैं टेंसेस जो पैसिवाइज में नहीं बनते, कुछ बन जाते हैं, वो जो बन जाते हैं 8, वो मैंने लिख दिया आपको, 4 नहीं बनते, 8 बन जाते हैं, वो नहीं बनते सारे। Yes, sir. अच्छा, आप शुड को भी शुड भी लेके आ सकते हैं, इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, ये ले शुड ले आए, मॉडल्स ले आए आप, सारे मॉडल्स आ जाएंगे इसमें, प्रेजेंट भी आ जाएगा, पास्ट भी आ जाएगा। English might be taught. हाँ, इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश शुड बी टॉट, ये ले। सर जब ये हम सेमी मॉडल यूज करते हैं हैव टू, हैड टू, तो इसमें ये बी की फॉर्म नहीं लगती इज एम आर, या जैसे बिल्कुल। अब आपने यहाँ पे बी लगाना छोड़ है दिया। डायरेक्ट उसमें, क्योंकि सेमी मॉडल के साथ एसएमआर तो आ नहीं सकते, तो हम डायरेक्ट बी लगाए थे उसके साथ। जैसे फ्यूचर सिंपल है तो हम उसमें एसएमआर वॉज वर तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो मॉडल है, मॉडल जो है या सेमी मॉडल है वो बी लेते हैं, एसएमआर Yes, तो नहीं sir. लेते। सेमी Sir, मॉडल्स जैसे- और मॉडल्स जो हैं वो एसएमआर वॉज वर को नहीं लेते, यस सर, वो बी But को sir, लेते if हैं आप या बीन को लेते हैं। supposed to be अगर taught, पास्ट करना है ना, अगर पास्ट करना है जैसे शुड है, आप शुड को इंग्लिश शुड बी टॉट, ये प्रेजेंट हो गया, अब इसको पास्ट क्या करूं? लेकिन सर ये जो आपने supposed to का बनाया है, इंग्लिश इज supposed to be taught, तो इंग्लिश supposed to be taught नहीं होगा। इंग्लिश ये जैसे इंग्लिश इज supposed to be taught,
हाँ, इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, तो ये पढ़ाई जाए। सर इसमें इज और वाज का नाम इस्तेमाल हो रहा है ना, तो नीडेड टू में नहीं है, हैव टू में नहीं है। तो देखें, तो मैं ये नीडेड टू जो है, मैंने आपको बताया था कि जो सपोज टू है वो ईडी एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, और नीड जो है वो डायरेक्ट वर्ब है। नीड वर्ब है, डेयर वर्ब है, ये सारे डायरेक्ट वर्ब हैं, लेकिन वो सपोज्ड वर्ब के तौर पे यूज नहीं हो रहा, वो ईडी एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, जब भी उसके साथ बी लेना पड़ रहा है। वो वर्ब नहीं है, सपोज जो है वो वर्ब नहीं है, बेसिकली वो ईडी एडजेक्टिव है। यस सर, क्लियर। जी हाँ, ये मसला है ना। जैसे टायर्ड है, अब टायर्ड को मैं बगैर एसएमआर के नहीं बना सकता, या वॉज वर्ब के, यही बोलते हैं ना, आई एम टायर्ड या आई वाज टायर्ड, बेसिकली वो ईडी एडजेक्टिव है। Yes, sir. ये मसला है। जैसे मैं बोलता हूँ सरप्राइज्ड या वरीड, तो ये वर्ब थोड़ी है, ये एडजेक्टिव है सारे, ये अच्छाई बुराई बता रहे हैं, ये एक्शन नहीं बता रहे। यस सर। असल में नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सर से कि शुरू से मुझे ही क्लास दे दें आप ग्रामर की, फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊं। थोड़ा सा Yes, sir. टीचिंग स्टाइल में फर्क आ जाता है। इंग्लिश आप इसको Yes, पास कर sir. लें आप। Yes. इंग्लिश शुड हैव बीन टॉट, अब इसको पास कर लें आप। इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए थी, It should had been. शुड हैव बीन, ये पास हो गया उसका। ये ले, ये भी पैसिव वाइज है। Should have. Should had. शुड का पास शुड हैव है ना। इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, Should इंग्लिश have पढ़ाई जानी been चाहिए taught. थी, अभी उसी का पास Yes, हो गया। sir. देख लें, शुड हैव के आगे देखें बीन आ Sir. गया, अभी इज एम आर वाज वर नहीं आएंगे इसमें, बिकॉज़ दीज आर द मॉडल वर्ब्स, दैट्स व्हाई। सर पास्ट में हैड नहीं आएगा? नहीं ना, शुड हैव, शुड के आगे हैड थोड़ी आता, शुड का पास शुड हैव है। Because it's not. हाँ, और फिर उसके बाद पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, सर शुड का और पास्ट फिर वुड भी तो है। शुड का पास वुड थोड़ी है, शुड का पास शुड हैव है। हू टोल्ड यू? शुड का पास वुड थोड़ी है, शुड का पास शुड हैव है, जिसको हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशंस, यानी ऑब्लिगेशन जो फुलफिल नहीं की गई। सही, शुड है। अब इसको मैं मस्त लिया है। English must be taught. एक ही पैटर्न बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। Yes. इंग्लिश मस्ट बी टॉट, इंग्लिश जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। ये प्रेजेंट हो गया, अब इसको आप पास कैसे करेंगी? English must have been taught. वेरी गुड। अब आपके बेसिक लॉजिक समझ आ रही ना, यही मैं चाह रहा था, लॉजिक क्लियर होता है। मुझे पढ़ाना तो कुछ और था, लेकिन I was supposed to teach someone something else, but I had to teach this. लेकिन मुझे ये पढ़ाना पड़ गया मजबूरन। मैं सोच रहा था कि आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन the basic concept was not clear, so मुझे मजबूरन इस पे आना पड़ा। सही जी, इंग्लिश मस्ट बी टॉट, इंग्लिश जरूर Must have पढ़ाई been जाए, taught. और इंग्लिश मस्ट हैव बीन टॉट, इंग्लिश जरूर पढ़ाई गई होगी या जरूर पढ़ाई गई थी, समथिंग लाइक दैट इन उर्दू। अब मस्ट हो गया, अब यू कैन यूज कैन, कुड, Can, could, might. कैन कुड हैव, तीनों में आप ले सकते हैं। कुड हैव, अब मैं बोलता हूँ इंग्लिश कैन बी टॉट, है ना, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है। सही, इसी को आप पास्ट कर लें। English could be taught. अच्छा, पास्ट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, कि इसका मतलब किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे पढ़ाई जा सकती थी, पॉसिबल चांस था लेकिन एक्शन हुआ नहीं, तो हम कुड हैव बीन भी लगा सकते हैं। तो ये प्रेजेंट हो गया। अभी तो डिटेल में असल में आप लोगों की वजह से लिख रहा हूँ, सो यू कैन लर्न। Okay, sir. Taught could English could have been taught. Yeah, could have been taught. ये पास्ट हो गया, वो पास्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ये पास्ट एबिलिटी हो गया। इंग्लिश कुड हैव बीन टॉट, अच्छा आपको पता है पैसिव जेरेंड भी होते हैं और पैसिव इन्फिनेटिव भी होते हैं। इंशाल्लाह आई विल टीच यू।
Sir, we have only 4 days. 3 days left now. One day has already passed. Yes, sir. So we have to complete. Inshallah. I will try to teach as much as possible. सही जी. So you have to teach us as much as you can. I'm So we trying. can, so we just as much as we can get. Sir, I'm trying to again, teach again all. and again class you can start. Now the time is over. See, the time Yes, sir. went so fast. 2 days no, but again sir next month. Let's Sir, in see. Ramzan. Even in Ramzan, I'll try to teach you a little late if it is possible. Like after Taraweeh, if I have time, then we'll set a time like Okay, sir. 11 to 12 or 10:30 to 11:30. If Okay, it's possible, it depends on Yeah. Sir Asif. If he sets any class, inshallah, I will teach, no problem. I'm very fond of teaching. No? I like teaching. See जी, you know, I teach by my heart. मैं ये नहीं कि जान छुड़ाने वाला नहीं पढ़ाता कि जान छुड़ा के पढ़ा लो. No, I'm not Yes. teaching like that. Yes, sir. Yes, sir. We are Good teacher taking is your not. class by heart. So you take. We are Sir, really enjoy your starting class. से sir starting से used to. सही जी. आप मॉडल भी ले सकते हैं, सेमी मॉडल भी ले सकते हैं, सारे टेंसेस भी ले सकते हैं. कुड की जगह आप मे और माइट भी ले सकते हैं. मे एंड माइट. English may be taught. May and might you can use present and past. English may be taught or might be taught. Might be. English might be taught. May or might. I'm writing in present. बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए ना पहले आपको, फिर आई विल एंजॉय इन टीचिंग. Yes, sir. Yes, मुझे sir. पढ़ाने में मजा आएगा. वरना Yes, मैं sir. आपको बेसिक आइडिया आप क्लियर नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बोलेंगे सर वो समझ ही नहीं आ रहा. Yes, giving answer. Yes, Yes, sir. you. बेसिक आइडिया मस्ट बी क्लियर. बेसिक आइडिया क्लियर नहीं है ना, तो फिर आपको मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा. यू वोंट एंजॉय एज वेल. पहले आपको ये पता चल जाए कि बनाना कैसे है पैसिव वॉइस, देन प्रेजेंट एंड पास्ट इन बोथ. ये प्रेजेंट हो गया. अब इसको English may पास्ट कर have लें. been taught. देखिए ना, अब आपको समझ आने लगा ना. दिस इज व्हाट आई वांट. Yes, sir. May and might Been taught. have been taught. अच्छा, इसको हम पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं. अब आपने पॉजिटिव पढ़ लिए हैं? No, sir. अभी नहीं पढ़े पॉजिटिव. अरे No, sir. कराऊं, पॉजिटिव नहीं पढ़े अभी आप लोगों ने. सही जी. Yes. अब ये शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब जितने भी मॉडल्स हैं, हम विल में तो हमने पहले ही बना लिए. विल भी मॉडल वर्ब है. ये सारे मॉडल वर्ब्स में, सारे टेंसेस में. अब ये और चीजों में भी यूज होता है, वो गेट के साथ भी यूज होता है. आई विल टेल यू हाउ टू यूज विद द गेट. अच्छा है, जरूरी नहीं है कि टारगेट हमेशा थिंग हो, चीज हो. इंसान भी टारगेट हो सकता है, यानी टारगेट मैं भी हो सकता हूँ, और टारगेट कोई चीज भी हो सकती है. जैसे उसमें टारगेट हमने इंग्लिश को किया है, हम किसी ह्यूमन को भी टारगेट कर सकते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है. तो टारगेट जो है वो इट कुड बी अ ह्यूमन और इट कुड बी अ लाइफलेस. बेजान चीज भी हो सकती है और कोई ह्यूमन भी हो सकता है. जी, हैव यू गॉट द बेसिक आइडिया? बेसिक आइडिया क्लियर हुआ आज? Yes, sir. व्हाट इज पैसिव वॉइस? हमने बनाना Yes, sir. कैसे है? व्हाट इज द बेसिक आइडिया? हाउ टू मेक इट In new way. not the new In way, that was detailed the way. common way. Not that detailed.